हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेस्ट एशिया का जो वॉर है वो अब थोड़ा ठंडा होते हुए दिख रहा है। फ्रॉम दैट हॉट वॉर फेज नाउ द वॉर हैज अगेन एंटर्ड बैक टू दैट कोल्ड फेज, जहां पे टेंशंस होगा, कंफ्यूजन्स होगा, तू तू मैं होगा, बट देयर विल बी नो वन फाइटिंग ऑन द ग्राउंड or in the air or somewhere else. So at least we have entered into that relatively cold peace between the two countries. ईरान और अमेरिका में ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत हो गया है, but yes, now they have come to a conclusion that let's stop fighting and let's sit together and talk. But obviously 60 days is going to be very crucial. इस बातचीत का क्या इंजाम होता है, क्या नेगोशिएशंस होता है, ये तो समय बताएगा, बट एटलीस्ट इट इज अ गुड थिंग दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज गेटिंग दैट पॉजिटिव सिग्नल कि ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ओपन हो रहा है। कुछ हद तक ओपन हो भी चुका है। ऑब्वियसली it is going to take a significant time for the Strait of Hormuz to be completely free, open, and safe. That obviously is going to take time. But yes, we have entered into that cold peace between Iran and America, which is a great thing for the world. But क्या इंडिया के लिए मुसीबतें खत्म नहीं होंगी? That is what I'm going to answer in this particular question. That the war in the Middle East has stopped. The war has entered into a phase of cold peace. But whether India's economy is still headed for certain shocks, जो आने वाले समय में दिखेगा, or I can frame this question in another way, that will the war in Middle East, despite it has stopped, will it haunt India's economy in the coming future? That's the question which needs to be answered. And why I'm discussing it, because Indian Express में एक आर्टिकल आया है जहां पे उसने बताया है that the shock of West Asia war is still going to haunt India. It's still going to create troubles for India. And that's why we have to be resilient. The government has to be proactive. बिकॉज जब भी वेस्ट एशिया वॉर की बात करते हैं तो हम लोग एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, और अब कह रहे हैं कि ऑयल जो है वो वापस से 75 बैरल पर आ चुका है, डॉलर पर बैरल पे, फ्रॉम द हाइज ऑफ 100 and $120 per barrel. So the crisis has been averted. But no, the crisis is going to be there because West Asia does not only matter to Indians for energy security, but also for our balance of payment security. Why? Because a huge amount of remittance comes from Middle East. And you know that India is a remittance capital of the world. और उसका एक significant chunk of remittance वो गल्फ कंट्री से आता है. बट क्या आज गल्फ कंट्रीज सेम रहेंगे जो वो रहते थे? क्या आज गल्फ कंट्रीज में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म बूम पे था, आज वो रहेगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वॉर तो रुक जाएगा, बट इंडिया में जो रेमिटांस की प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में बढ़ते रहेगी, विच कैन क्रिएट अनदर सीरियस इम्पैक्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम एनर्जी इम्पैक्ट. तो आज इसी गल्फ स्लोडाउन के बारे में बात करेंगे कि वाई गल्फ स्लोडाउन is a thing which is going to happen and how it puts our remittance lifeline at a serious risk. India, my friends, is a country who has the most vibrant global diaspora. Around 35.4 million Indians जो हैं वो इस समय बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं. उसमें से 15.9 millions are still citizens of India, working abroad as NRI. And some people have become citizens of their own country where they have shifted and they remain PIOs, persons of Indian origin. इसमें से अकेले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो GCC कंट्रीज हैं उसमें लगभग 90 लाख इंडियंस रहते हैं, 8.9 मिलियन इंडियंस. और ये GCC कंट्रीज जिसमें सऊदी, UAE, कतर, ओमान, ये जो भी कंट्रीज हैं GCC में, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट, इंडियंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है to move out and shape their life towards prosperity.
और इसी एक वाइब्रेंट डायस्पोरा जो 35.4 मिलियन का है, जिसमें से लगभग 16 मिलियंस तो एनआरआईज हैं, इसकी वजह से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटांस रिसीव करता है। इफ वी लुक एट द डेट ऑफ 2024-2025, तो जो इनवर्ड रेमिटांस था इट वाज एज हाई एज 135 टू 138 बिलियन डॉलर, जो इनफैक्ट उसके प्रीवियस ईयर से 14% का ग्रोथ देखने को मिला था। So this completely makes India the dominant player with respect to receiving the world's largest recipient of remittance. इंडिया के लिए रेमिटांस क्यों मैटर करता है? ऑब्वियसली आप देख सकते हैं रेमिटांस की जो वैल्यू है इट इज अराउंड 3% ऑफ इंडियाज जीडीपी, जिससे हम अपने ट्रेड डेफिसिट को हाफ फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब अगर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट गुड्स में, सर्विसेज में तो हमारा ट्रेड सरप्लस है, अगर हम लोग मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें और अगर हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट -$100 है, देन अकेले $50 का प्लस हम लोग रेमिटांस से लाके इसको फाइनेंस कर सकते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन सेविंग आवर फॉरेक्स रिजर्व। इसलिए रेमिटांस के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अभी आरबीआई ने कहा कि बाहर से पैसा इंडिया में जमा करो, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देंगे एंड अदर थिंग्स, बट वन थिंग विच साइलेंटली सेव्स आवर फॉरेक्स रिजर्व इज दिस रेमिटांस। लेकिन ज्यादा लोग इसके बारे में सीरियस नहीं है। आप देख सकते 3% ऑफ इंडिया जीडीपी है जो अकेले मोर देन हाफ ऑफ आवर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस कर सकता है। चलिए ये तो हो गया कुछ बड़ी बड़ी बातें। सिंपल लेवल पे बात करें तो ये रेमिटांस जिन परिवारों को भेजा जाता है उन हाउसहोल्ड्स का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, बच्चों का फीस, मेडिकल केयर फॉर फैमिलीज कितने हद तक इंश्योर होता है, खासकर स्टेट्स लाइक केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड पंजाब में। तो ये इकोनॉमी को फेवर तो करता है, बट ये आम उस परिवार को भी जिसके लिए इंडिया में बहुत हद तक दरवाजे बंद हैं और सरकार से जो मदद मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है, तो ये रेमिटांस उनके लिए एक जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो जाता है। इनफैक्ट अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस में तो ये कहा गया है कि ये रेमिटांस की वजह से एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी होता है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को एक सिग्निफिकेंट पढ़ाई दे सके, जिससे उस पूरे फैमिली की अपवर्ड मोबिलिटी हो सके, पूरे परिवार की वेलबींग हो सके, जो इंडिया में कभी हो नहीं सकता था काम करने से और सरकार की फ्रीबीज लेने से या सरकार की स्ट्रगलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से फैसिलिटीज लेके। बिकॉज आज आपको पता है बच्चों को सरकारी स्कूल कौन ही भेजना चाहता है, सरकारी हॉस्पिटल कुछ छोड़ दे तो कौन जाना चाहता है। ये तो हालत बना रखा है आपने। और प्राइवेट जाओ तो प्राइवेट तो ऐसा लूटेगा, ऑल्दो सर्विस भी दे रहा है बट पैसे भी बहुत ले रहा है। सो वैसे केस में रेमिटांस उन गरीब परिवारों के लिए, खासकर स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन पैराडॉक्स यही है कि रेमिटांस इंडिया के लिए बहुत हद तक मदद करता है, ट्रेड डेफिसिट फाइनेंस करता है, फॉरेक्स रिजर्व बचाता है, अपवर्ड मोबिलिटी क्रिएट करता है, हाउस होल्ड वेलबींग क्रिएट करता है, इनइक्वालिटी कम करता है, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करता है। बट यही एसेट हमारे लिए वल्नरेबिलिटी भी बन जाता है। क्यों? बिकॉज जब कोई प्रॉब्लम आता है तो जो परिवार रेमिटांस के ऊपर निर्भर है उसी को सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलना पड़ सकता है। मसलन वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है आपने देखा, क्राइसिस। आज हम लोग क्राइसिस की वजह से बात करें कि इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, बट आप उनसे परिवार से जाके पूछिए जो परिवार रेमिटांस के पैसे से अपने बच्चों को स्कूल फीस देते हैं, जिन परिवार में रेमिटांस के पैसे आने से उनके परिवार में किसी का इलाज चल रहा है, वो भी तो कष्ट में है। चलो आज ये वॉर किसी हद तक रुक गया, बट क्या आपको लगता है डैमेज नहीं हुआ है? तो इसीलिए पैराडॉक्स ये है कि जो परिवार रेमिटांस के बेसिस से अपवर्ड मोबिलिटी इंश्योर करते हैं, लेकिन यही वो परिवार हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं किसी क्राइसिस से। सो वही कहा जाता है ना कि क्राइसिस जब आता है तो वो सबसे पहले गरीबों को तोड़ता है, और यही हुआ। बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट घूमने नहीं गए, यूएई में, दुबई में होटल बुक था, नहीं जा पाए, वॉर चल रहा है ना, कैसे जा पाए। बट एनर्जी सिक्योरिटी, गैस का दाम बढ़ा, किसको दिक्कत हुआ? ढाबे वाले को। किसको दिक्कत हुआ? माइक्रो इंडस्ट्रीज को। क्या कोई बड़े कंपनी को दिक्कत हुआ? क्या आपको और मुझे दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। एनर्जी का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ने तो कौन फर्क पड़ता है। लेकिन
जब भी क्राइसिस आता है तो उस गरीब परिवार को अफेक्ट करता है। सरकार बहुत हद तक पेट्रोल डीजल के दाम को सेव करने के लिए कि आम जनता को महंगाई से ना झेलना पड़े, उसके लिए तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, वेरी गुड। बट रेमिटांस के ऊपर भी एक सिग्निफिकेंट निर्भरता है, खासकर उन गरीब राज्यों की परिवारों को। और आप देख सकते हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज हैं, इट अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ इंडियाज टोटल रेमिटांस इन 2023-2024। बहुत सारे इंडियंस इन्हीं वेस्ट एशिया में कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और डोमेस्टिक सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं। एंड दैट इज द क्वेश्चन विच आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, आंसर इज दैट हैज द क्राइसिस been overcome, or still we are ready, or still we are about to witness another crisis, this time in remittance? आगे बढ़ने के पहले ये मेरा एक brief introduction है. The purpose of putting this slide is that you should know about me, and if you are interested in watching these kind of interesting videos and getting good authentic content for your examination, not rubbish content, then you can join this particular group. Unacademy IAS has delivered an excellent result this year. English medium के online class program student हमारे top rank लाए हैं. हिंदी medium में भी हमारी result काफ़ी अच्छी रही है, और ऐसे कई सारे students जो हैं वो क्लासरूम पेड बैच से क्वालिफाई किए हैं. दैट इज अ रिमार्केबल थिंग विच अनअकैडमी IAS हैज अचीव्ड. इस समय द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल ग्रैंड फेस्टिवल, द एजुकेशन महोत्सव इज गोइंग ऑन, वेयर अनअकैडमी IAS इज ऑफरिंग यू द ट्रिपल ट्रीट. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल ट्रीट? लेट्स से आप 2028 एस्पिरेंट्स हैं, आपने 12 महीने का प्लान लिया, उस 12 महीने में आपको 12 महीने फ्री तो मिल ही रहा था, अब और 12 महीने फ्री मिलेगा, विच मीन्स 12 महीने का पैकेज लो एंड गेट अ 36 मंथ का एक्सटेंशन. दैट्स वाओ, राइट? और इसके ऊपर इफ यू वांट 50% फर्दर स्कॉलरशिप तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो SUJ50, जिससे आपको 50% का स्कॉलरशिप डायरेक्टली मिल जाएगा. लेट्स मूव ऑन. डैमेज इज डन, दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक. वर्ल्ड बैंक की मैक्रो पॉवर्टी आउटलुक की जो डेटा आई है, शॉकिंग डेटा. इस डेटा के हिसाब से 2026 में GCC कंट्रीज का ग्रोथ 4.4% बताया गया था जनवरी में. 4.4%, जो कि ठीक ठाक है, एवरेज है, ऐसा ही होता है. बट नाउ द लेटेस्ट डेटा हैज कम, और उसमें बताया गया है कि 2026 में GCC कंट्रीज का जो ग्रोथ रेट होगा, it is at its lowest level, 1.3%. इनफैक्ट कतर और कुवैत का तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, रिसेशन में चला जाएगा बाय 5.7 to 6.4% रिस्पेक्टिवली इन 2026. नाउ दिस इज वेयर वी नीड टू बी केयरफुल. अर्ली मार्च में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्फेडरेशन ने वार्न किया कि जो GCC कंट्रीज हैं उसमें 15% का रिडक्शन आ सकता है वर्कफोर्स में, बिकॉज इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, जिससे एनर्जी की डिमांड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, ये सब कम हो जाएगी. दुबई की कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में ऑलरेडी स्लो डाउन देखने को मिला है, जहां पे होम प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट फॉल आया है और प्रॉपर्टी कंप्लीशन में बहुत सीरियस डिले आया है बिकॉज ऑफ सस्पेंशन. और ये वही सेक्टर्स हैं जहां पे मैक्सिमम इंडियंस काम कर रहे हैं. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी ने प्रोजेक्ट किया है कि ये जो सिनेरियो जिस तरीके से प्रोट्रैक्टेड बेसिस पे चला है, इससे GCC कंट्रीज में 27% विजिटर्स का ड्रॉप आ सकता है 2026 में, कॉस्टिंग अराउंड $56 बिलियन इन टूरिज्म स्पेंडिंग. UAE के टूरिज्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है, जहां पर बहुत सारे लोगों को इनडेफिनिट अनपेड लीव पर भेज दिया गया है, और बहुत सारे लोगों का सैलरी रिडक्शन कर दिया गया है 20 to 50%. अगेन UAE के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वर्किंग, और जो इस समय सबसे ज्यादा वर्कर्स की छटाई हो रही है, कहां से हो रही है? कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, मैक्सिमम इंडियंस, डोमेस्टिक वर्कर्स, मैक्सिमम इंडियंस, लो स्किल सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज, मैक्सिमम इंडियंस. और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये लो स्किल सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयज इंडिया में आ जाए, कंस्ट्रक्शन लेबर इंडियंस में आ जाए, तो इंडिया में उनको उतना पैसा भी नहीं मिलेगा. सो दिस इज वाई दे, जो इंडियन का जो डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, वो आज क्राइसिस में है. और ये क्राइसिस खत्म नहीं हुई है, बिकॉज स्लो डाउन आने वाला है, भयानक स्लो डाउन आएगा GCC कंट्रीज में. और उससे रेमिटांस जो आज $135 बिलियन पे है, आप समझ सकते हैं अगर उसमें डिक्रीज होता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये भारत के लिए बन सकती है. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी तो हमने सॉल्व कर लिया है बहुत हद तक, ऑल्दो अभी हमें रिजर्व्स और वो सब बढ़ाना है, बट इमीडिएटली
हमें अपने डायस्पोरा में भी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा टुवर्ड्स मच मोर स्टेबल जियोग्राफी लाइक जर्मनी, इटली, जापान, यूके। ऑल्दो एग्रीमेंट हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहे हैं, बट इन पार्टनरशिप का जो पेस है और स्केल है, इसको हमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कड़वा सच, भारत को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ठीक करना पड़ेगा। आखिर क्यों छोड़ के जाना पड़ता है? कंस्ट्रक्शन लेबरर्स छोड़ के जाते हैं इंडिया। कुणाल शाह व्हाट्सएप के हेड बन गए, वो भी छोड़ के चले गए इंडिया। सुंदर पिचाई कभी गए, भूल गए इंडिया को, आ ही नहीं पाए वापस। तो ये ठीक है, कुछ लोगों को इंडिया छोड़ के जाना चाहिए, इंडिया में इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और बाहर जाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में है। बट वो चॉइस से होना चाहिए, मजबूरी से नहीं होना चाहिए। आपका चॉइस है, आप जाओ ना काम करने, कौन रोक रहा है? बट वेन दिस जॉब के लिए यू लीव योर एंटायर फैमिली, यू वर्क इन दैट घेटुइश जोन, छोटे छोटे कमरे में बंद करके इंडियंस को किसी तरीके से स्लेव की तरह रखा जाता है। दिस इज नॉट अ चॉइस, दिस इज अ कंपल्शन। So that's why India needs to aggressively increase our manufacturing industry, जो एक सबसे स्ट्रगलिंग सेक्टर है इंडिया का। और इन माइग्रेंट्स जो भी इंडिया वापस आएंगे या आ रहे हैं, उनको रीस्किलिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म देना चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेजिलियंस बन सके और जो माइग्रेंट हाउस होल्ड्स में एक एक्सटर्नल शॉक आ सकता है, उस वनरेबिलिटी को हम किसी तरीके से कम कर सके। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।